بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسلما عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے یہ کہیں گے کہ ان کو جس قبلہ پر یہ تھے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت فرماتا ہے، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ اور ہم نے یہ قبلہ جس پر تم تھے اس کو نہیں بنایا مگر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کریم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹتا ہے، اور نہیں ہے یہ بھاری مگر ان پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین و حاضرین ناظرین گرامی قدر، پہلے پارے کی آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کے مسلمانوں کے اوپر اعتراضات تھے ان اعتراضات کے وحی جلی کے ذریعے ان کا جوابات دیا۔ اب اس آیت کا تعلق یہاں بھی گویا کہ ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس سوال کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے۔ فرمایا گیا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مضطرب کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ میں کعبہ ابراہیمی جس کی بنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، میں اس کی طرف کیا منہ کر کے نماز پڑھوں جو کیا میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار کردہ کیا ہے کعبہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہودی مسلمانوں کو یہ طنز بھی کرتے تھے، یہ اعتراضات بھی کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ان مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ ادھر سے ہمارے اوپر سوالات کرتے ہیں، ادھر سے ہماری مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور ادھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلمانوں پر بہت زیادہ شاق گزری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کیا بہت بری لگی کہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس کے اندر یہ بات آئی کہ میں قبلہ ابراہیمی کی طرف، کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں تاکہ ان کے دل کے اندر جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات کا کیا ہو جائے، دفعیہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ کیا کریں گے، تمہارے اوپر اعتراضات کریں گے، سوالات کریں گے۔ گویا کہ یہ غیب کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے دی گئی تھی، یہ پیش گوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ تو پھر جب کعبہ کی طرف حضور نے نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی تو اب یہ اعتراضات کرنے کیا کر دی، انہوں نے شروع کر دیا۔ سامعین، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمتیں بیان کی ہیں کہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، پھر ایک طرف ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ بھئی کعبہ ہی کیوں قبلہ بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جہت کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کے اندر چند حکمتیں مستور ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف اپنی اپنی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس صورت کے اندر جماعت کے اندر نظم و ضابطہ نہیں ہوگا، جمعیت نہیں ہوگی، اس کے اندر معاملہ کیا ہوگا، بکھر جائے گا، شتات کا کیا شکار ہو جائے گا، اس کے اندر کیا نظم و ضبط حاصل نہیں ہوگی۔ تو نظم و ضبط حاصل کرنے کے لیے ایک جہت کو متعین کیا گیا کہ ایک جہت کی طرف کیا منہ کر کے نماز پڑھو۔ دوسری اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس وقت بندہ کسی صاحب اقتدار کے پاس، کسی امیر آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف کیا منہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب بندہ احکم الحاکمین ذات کے سامنے جب نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر ایک جہت کی طرف کیا متوجہ ہو کر
नमाज अदा करे ताकि उसकी क्या हो जाए, उसकी तरफ रगबत हासिल हो जाए। तीसरी वजह यहां पर यह भी जिक्र की गई कि अगर कोई बंदा एक जिहत की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़े तो इस सूरत के अंदर खुशू और खुजू हासिल नहीं होगा। तो खुशू और खुजू के हासिल करने के लिए एक जिहत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को क्या किया गया, लाजिम किया गया। फिर काबा को ही किबला क्यों बनाया गया, इसके अंदर हिकमत बयान करते हुए अल्लामा साहब फरमाते हैं कि काबा ये अल्लाह ताला का अपना घर है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अपनी तरफ मंसूब करते फरमाया अनतहिरा बैतिया, फरमाया कि मेरे घर को तुम क्या करो, पाक करो, साफ करो। तो उसका ये अपना घर है, तो इसलिए फरमाया कि इसी की तरफ तुम क्या करो, मुंह करके नमाज पढ़ो। दूसरी हिकमत इसके अंदर यह बयान की गई है कि काबा जमीन के वसत के अंदर है, दरमियान के अंदर है। तो अब इस काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया कि हर मामले के अंदर तुम भी क्या है, दरमियानी चीज को इख्तियार करो। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है खैरुल उमूर औसतुहा, उमूर के अंदर सबसे बेहतरीन चीज जो होती है वो क्या होता है, दरमियानी मामला होता है। यानी कि दरमियानी चीज को इख्तियार किया जाए तो वो क्या बेहतरीन चीज होती है। तीसरी हिकमत इसके अंदर यह इरशाद फरमाई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्वाहा, महबूब जिस किबले को आप पसंद करते हैं हम उस किबले को आपके लिए क्या कर देंगे, फेर देंगे, आपके लिए तब्दील कर देंगे। हम उस किबले का आपको वली, वारिस, हाकिम, अमीर बना देंगे। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब तरीन किबला काबतुल्लाह है, इसलिए काबा को क्या किबला बनाया गया है। चौथी हिकमत बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला ने कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त काबा की तामीर की थी उस वक्त 5 पहाड़ों से मिट्टी को जमा किया था, उस मिट्टी को गूंद कर क्या काबा की तामीर की। अब ये काबा की तामीर पहाड़ों से मिट्टी लेकर इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे गुनाह अगर पहाड़ों की भी सर्दी हो, तुम जब काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। पांचवी हिकमत बयान यह की गई है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी तंज करते थे, तान करते थे कि देखो ये हमारी मुखालफत करता है और हमारे किबले की तरफ क्या मुंह करके नमाज पढ़ता है, तो अब रब ताला ने उनके इस एतराज को दफा करने के लिए फरमाया कि हुजूर आप काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। छठी हिकमत यह बयान की गई कि मुसलमान मिल्लत इब्राहिमी की, दीन इब्राहिम की क्या करते हैं, इत्तिबा करते हैं। और काबा भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया, इसलिए फरमाया गया कि तुम क्या काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करो। यहां कुछ मसाइल जो काबा के साथ ताल्लुक रखते हैं हमारी कुतुब फिक्र के अंदर क्या मज़कूर होते हैं, मैं बयान करता हूं ताकि सादा आवाम को उनके बारे में कुछ पता चल सके। पहला मसला ये याद रखिए कि नमाज के अंदर जो हम सजदे की नीयत से झुकते हैं, ये काबा को हम सजदा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अल्लाह को सजदा कर रहे होते हैं। हाँ, काबा हमारी जेहत की तरफ होता है, हम उसकी जेहत की तरफ क्या कर रहे होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा माअज़ अल्लाह काबा की नीयत करके सजदा करे तो वो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। दूसरा यहां पर एक मसला यह भी याद रखिए कि काबा जो मौजूदा जिस जमीन के ऊपर जिस जगह के अंदर बना हुआ है उस जगह तहत सरा से लेकर अर्श उला तक वो सारी जगह ही काबा है। अगर कोई बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए और ये जो काबा की जो इमारत है अगर वो उसके सामने ना भी हो, अगर उस काबा के ऊपर वाली जो जगह है वो फिजा जो है अगर उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो भी नमाज क्या हो जाएगी, उसके लिए काफी हो जाएगी, जायज हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई बंदा अलियाजुबिल्ला अगर ये वक्त आ जाए कि ये काबा जो इस जगह के अंदर है अगर कोई बदबख्त और शकीर कल्ब इसको क्या कर दे, घिरा दे, साकित कर दे, तो अब जो जगह वो खाली मैदान हो उसकी तरफ अगर बंदा नमाज मुंह करके नमाज पढ़े तो भी क्या है, काफी हो जाएगी। क्योंकि ये इमारत क्या है, जेहत नहीं है बल्कि वो जगह क्या है, जेहत है। तीसरा यहां पर यह मसला ये याद रखिए कि मक्का और मदीना में जो रहने वाले हजरात हैं उनके लिए यह जरूरी है कि काबा के ऐन की तरफ वो क्या करेंगे, मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। और जो मक्का और मदीने के अलावा हैं उनके लिए ये जरूरी है, उनके लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो जेहत काबा की तरफ क्या करके मुंह करके नमाज पढ़े तो उनकी नमाज क्या हो जाएगी, काफी और जायज हो जाएगी। और यहां पर एक और मसला ये भी याद रखिए कि अगर कोई आदमी अंधेरे की वजह से या इल्म की वजह से, ला इल्म की वजह से उसको काबा मालूम ना हो रहा हो, किबला मालूम ना हो रहा हो कि किबले की डायरेक्शन किधर है,
तो उसको चाहिए कि गुमान करे, तहरीक करे, सोचे विचार करे। अगर गालिब गुमान उसका एक जिहत की तरफ, एक सिमत की तरफ क्या हो जाता है, मुतअय्यन हो जाता है, तो उस जिहत की तरफ और उस सिमत की तरफ क्या है, मुंह करके नमाज पढ़ ले तो वो क्या हो जाएगा, काफी और जायज हो जाएगा। अब अगर नमाज पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि इसका जो गालिब गुमान था वो क्या गलत निकला, तो भी क्या है, उसको कोई इआदा करने की कोई जरूरत और कोई हाजत नहीं होगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहादा अलन नास। फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम दरमियानी उम्मत। कैसे कि तुम तमाम उम्मतों के ऊपर गवाह बनोगे और रसूल करीम तुम्हारे ऊपर क्या है, गवाह बनेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युदअ नूह यौम अल क़ियामत फयक़ूल लब्बैक व सअदैक या रब्बी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, वो अर्ज करेंगे या बारी ताला मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। फयक़ूल हल बल्लग़ता फयक़ूल नअम। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा ए नूह, क्या तूने अपनी कौम को तबलीग की थी? वो अर्ज करेंगे बारी ताला मैंने कर दी थी। फयक़ाल या उम्मती हल बल्लग़तुम फयक़ूल मा अताना मिन नज़ीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्मत से पूछेगा कि भाई बताओ तुम्हें क्या तबलीग की गई, हल बल्लग़तुम, क्या तुम्हें तबलीग की गई थी? फयक़ूल वो कहेंगे हमारे पास तो कोई डर सुनाने वाला आया ही नहीं था। फयक़ूल मन यशहदु लका। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नूह से पूछेगा कि भाई बता तेरा कोई शाहिद है, तेरा कोई गवाह है? फयक़ूल मुहम्मद व उम्मतुहु फयशहदूना अन्नहु क़द बल्लग़। वो कहेंगे हाँ मेरे शाहिद हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपकी उम्मत है, वो मेरी क्या करेंगे, गवाही देंगे कि हमने क्या कर दी है, तबलीग कर दी है। अब ये उम्मत मुहम्मदिया को ये शरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया कि इतनी बेहतरीन उम्मत कि ये क्या है, दीगर उम्मतों के ऊपर गवाह बनेगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उम्मत मुहम्मदिया को ये शरफ दिया, ये फजीलत अता फरमाई है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कर रही है वो क्या है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। हालिया दिनों के अंदर आपने मसला देखा कि जियो न्यूज, ये जो चैनल है न्यूज का, इसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और सरकार इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इनके क्या खाके शाया किए गए। और ये मसला नामूस रिसालत का है, और नामूस रिसालत का जो मसला बहुत ही इंतहाई हसास मसला है। इसके अंदर किसी किस्म की भी गलती क्या है, काबिल एतबार कोई नहीं, काबिल नहीं है कि क्या किया जाए, इसके अंदर गलती की जाए। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर उनके चीफ जस्टिस के ऊपर या उनके अपने किसी इदारे के ऊपर कोई मसला खड़ा हो जाए, उनके किसी सिविल जो उनका ऑफिसर होता है उनके ऊपर अगर कोई मसला खड़ा हो जाए तो वो क्या करते हैं, तौहीन अदालत हो गई है, तो फिर क्या वो करते हैं, केस लड़ते हैं और केस लड़वाते हैं, फिर क्या सजा दी जाती है। लेकिन यहां जियो न्यूज वालों ने जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर तौहीन की है, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही हुकूमत वक्त को कि ये जरा सा बयान रिकॉर्ड करवा कर उनको क्या धमकी देकर कहेंगे तुम्हारा चैनल क्या है, बंद कर दिया जाए। और बंद किया तो कितना, 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया, और ये काबिल एतबार ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि हक ताला में सही मानों के अंदर नामूस रिसालत के मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे मैं ये बात अर्ज करता हूं कि उम्मत मुहम्मदिया ये तो क्या अफसर तरीन उम्मत है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अपनी उम्मत पर भी क्या होंगे, अपनी उम्मत के हालात से भी क्या आगाह हैं और दीगर उम्मतों के हाल से भी क्या आगाह हैं। इस पर क्या रिवायात बहुत ज्यादा है, कुरान की आयात क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मुहद्दिसीन के कौल को जिक्र करता हूं, मुफस्सिरीन के कौल को जिक्र करता हूं। क्यों कि जो माना मतलब कुरान और सुन्नत का उन्होंने समझा है, हमारी समझ के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए हम उनके कौल को बतौर दलील पेश करते हैं। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला फतहुल अजीज के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बाशक रसूल बरशुमा गवाह ज़ेरा आंके मुत्तले अस बिनूर नबूवत बर रुतबा हर मुतज़य्यिन बिदीन खुद के दर कुदाम दर्जा दर दीन मन रसीदा व हकीकत ईमान ऊंचैस व हिजाबे के बदा अस तरक्की महजूब मांदा अस्त कुदाम अस्त पस ऊ मिन शनाजत गुनाहान शुमारा बदरजात ईमान शुमारा
व अमाल नेक व बद शुमारा व इखलास व निफाक शुमारा। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हैं और वो नूर नबूवत के साथ मुत्तले हैं कि किसका दीन के अंदर क्या दर्जा है और उसके ईमान की क्या हकीकत है और किस पर्दे की वजह से वो ईमान के दर्जात को बुलंदी को नहीं पा सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कि तुम में से गुनाहगार कौन है और तुम में से ईमान के आला दर्जात पर कौन फाइज है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि कौन अमाले बद करने वाला है और कौन अमाले नेक करने वाला है। और हुजूर जानते हैं कि कौन मोमिन मुखलिस है और हुजूर जानते हैं कि कौन मुनाफिक है तुम में से। यही इबारत शेख साहब ने तो क्या फारसी के अंदर जिक्र की, लेकिन तफसीर रूहुल मानी के अंदर अलामा इस्माइल हक्की ने अरबी के अंदर यही इबारत जिक्र की। आगे अलामा कस्तलानी और इब्ने अमीर हाज मक्की रहमहुल्लाह ताला ने बुजुर्गों ने इन दोनों बुजुर्गों ने ये इरशाद फरमाया ला फर्क बैना मौती व हयातिही आनी फी मुशाहदतिही li उम्मती व मारिफती बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरहिम व ज़ालिका इंदहु जमीअ ला खिफा फीह। फरमाते हैं कि हुजूर की मौत और हयात के दरमियान कोई फर्क नहीं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत का मुशाहदा कर रहे हैं और उनके अहवाल से, नियत से, अज़ाइम, इरादों से आप वाकिफ हैं, आरिफ हैं, जानते हैं। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाँ वाज़ेह हैं, इसके अंदर कोई खिफा नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के अहवाल से भी क्या आगाह और दीगर की उम्मतों के अहवाल से भी क्या है, आगाह है। इसलिए जो बंदे कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते नहीं, वो अपने ईमान की क्या करें, फिक्र मना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह बिन्नास व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या है, किबला को फेरने का हुक्म दिया था कि हुजूर आप क्या करें, बैतुल मक़दिस से मुंह फेर कर काबा की तरफ क्या करें, मुंह करके नमाज पढ़ें। अब ये यहूदियों के ऊपर बात क्या है, बड़ी सख्त हो गई थी, क्योंकि उनको ये पता था कि ये तमाम अंबिया का क्या किबला था बैतुल मक़दिस। लेकिन अब बैतुल मक़दिस को क्या किबला को छोड़ दिया गया, अब काबा को क्या किबला बनाया गया। अब फरमाया कि हाँ अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे तो फिर ये उसके ऊपर क्या है, मुश्किल नहीं है। फिर यहां पर एक बात ये भी याद रखिए कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी थी और जिस वक्त ये 16 महीने या 17 महीने के अंदाजा है कि इतने जमाने के अंदर हुजूर ने नमाजें पढ़ी और पढ़ाई, और आपके सहाबा में से असद बिन ज़ुरारा और कुछ हजरात बाकी उन्होंने भी इस किबला की तरफ बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी थी, लेकिन बाद में फौत हो गए थे, उनको काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की फुर्सत और जमाना नहीं मिला था। आया उनकी नमाजों का क्या हुक्म है, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को जाया नहीं करता। आगे फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के साथ, लोगों के साथ क्या है, मेहरबानी फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब रब ताला कितना बड़ा मेहरबान है, इसको सिर्फ इस रिवायत से बंदा अंदाजा करे। हज़रत उमर बिन खत्ताब वो रिवायत करते हैं कदिम अला नबी सबियन फ़इज़ा मनाअतु मिन सबिय कद तहलुबु सबिया तस्की इज़ा वजदत सबियन फी सबिय अखज़तु फ़अलसक़तु बिवतनिहा व अर्दअतु। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चंद कैदी लाए गए, उन कैदियों में से एक कैदी औरत थी जिसके पिस्तानों के अंदर दूध भरा हुआ था। अब उसका बच्चा उससे गुम हो गया था। अब जब भी उसके पास बच्चा आता तो वो बच्चे को क्या है, पकड़कर गले से लगाकर, सीने के साथ लगाकर उसको क्या दूध पिलाना शुरू कर देती। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतरौना हाज़िही तारिहतन वलदहा फिन्नार। हुजूर ने हमसे पूछा, मुखातब करके इरशाद फरमाया कि बताओ भाई, क्या ये औरत ये गवारा करेगी कि इसका बच्चा क्या जहन्नम के अंदर जाए। कुलना ला वही ला तक़दिरु अला अल्ला तक़दिरुहा। हमने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं नहीं, ये औरत अपने बच्चे को जहन्नम के अंदर छोड़ने के ऊपर कादिर नहीं होगी, ये नहीं छोड़ेगी अपने बच्चे को जहन्नम के अंदर। फ़क़ाल लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों के साथ इस औरत जो अपने बच्चे के साथ रहम कर रही, इससे भी ज्यादा क्या करने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बंदों के साथ रहम फरमाने वाला है, लेकिन बंदे खुद क्या करें, गुनाह कर करके उसकी रहमत से क्या हो जाए, दूर हो जाए, उसके लानत से क्या हो जाए, मुस्तहिक हो जाए। तो ये बंदों की क्या है, गलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसके अंदर कोई कमी कोताही नहीं कि उसकी रहमत तो क्या हर वक्त होती ही रहती है। हक ताला से दुआ कि हक ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।